Hi, welcome to the official YouTube channel of SK Job Seeders, an emerging industry leader in high quality trainings. I'm Shakti Singh Tamar. I'm a technical evangelist, corporate trainer, and software consultant, and these sessions are a part of my initiative to give back to developer community. You can reach me at shakti@jobseeders.com or visit my LinkedIn profile. Enjoy watching. So let's start. I'm starting all over again. So in this sample I'm going to create completely new MVC site with all CRUD operations using entity framework, repository pattern, dependency injection, dependency inversion, constructor injection, unity container, unit of work and lot of other patterns. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. एक एम्प्टी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. रेजर व्यू इंजन. साउंड में रिकॉर्ड होता है इसमें. ये भी रिकॉर्ड हो गया है. So we'll start by adding a controller. Okay, first let's start by adding a database. So what we can do is inside the model folder we can add a new item, entity data model. You can give it any name. Choose a connection string. Select a database. Once this is done, just go ahead and build it. Now if you go inside this folder, I have a person class with three properties: ID, name and age. So I'm going to build a controller which is going to have a CRUD operation on this class. सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाते हैं. Add controller, person controller, let's take it as empty. Now index section. Index section, what we'll do is index will work like list. कोई भी जब यहाँ आएगा तो जितने पर्सन डेटाबेस में है वो सारे दिखने चाहिए. तो वो कैसे मिलेगा? पर्सन, एंटिटीज,
What is the name of our entity? It's person entities. And I will do entities dot people dot to list. And we'll pass it to the view. Then right click on the view, add view, create a strongly typed view, model class person, template list. When I select this template, Visual Studio will automatically create a view with required HTML. That is what the purpose of template is all about. हमने list template select किया है तो एक view बन जाएगा HTML और इसमें पूरा का पूरा कोड ऑटो जनरेटेड है. जितनी प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पर आ गई अपार्ट फ्रॉम ID, because entity frameworks works in such a way that for every property, if there is ID, if ID comes in the name of the property, it will not show them in the template. So it's a way to safeguard your primary key. डेटाबेस में हमें प्राइमरी की बनाना ही जरूरी है. अगर हम नहीं बनाएंगे बिना प्राइमरी की के एंटिटी फ्रेमवर्क अच्छे से काम नहीं करता, काम ही नहीं करेगा. इसमें जो एंटिटीज डॉट पीपल था वो कैसे आएगा? पीपल कैसे आया था? ये किसी कहीं मैपिंग है. पर्सन यहाँ पर है एंड कंटेक्स्ट में आप देखो DB सेट पर्सन, उसने पीपल नाम दिया हुआ है. सो डेटाबेस स्कीमा में कहीं पीपल डिफाइंड है. दैट्स वाई, अदरवाइज यहाँ पर्सन ही लेता हुआ. ठीक है ना? मॉडल्स के अंदर डालते हैं, ऐप डेटा के अंदर डालते हैं. I am put it under models folder because I am going to use the auto generated class as model classes. I am not using them as del. Normally क्या होता है, आपका del layer अलग होता है and del layer से वो classes हम लोग directly presentation layer पे expose नहीं करते हैं. We expose our model classes, इनको हम DTO भी बोलते हैं. That's a data transfer object pattern. डेटा एक्सेस लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में डेटा टू एंड फ्रो लाने का काम मॉडल क्लासेस करती है. बट यहाँ पर मैं अलग से मॉडल नहीं बना रहा हूँ. आई एम यूजिंग द डेल क्लासेस एज मॉडल क्लासेस, इसलिए मैंने उसको मॉडल फोल्डर में रख दिया है. सर दोनों का वर्किंग सेम है. अगर हम फोल्डर बनाना है डेल और उसके अंदर वर्किंग सेम है. मैंने आपको कन्वेंशंस बताई हैं. राइट नाउ आई एम यूजिंग डेल एज मॉडल क्लास, तो मैंने उसे मॉडल में रख दिया. अगर आप मॉडल अलग बनाना चाहते हैं, डेल अलग बनाना चाहते हो, तो अलग अलग फोल्डर बना के करते काम. राइट नाउ मैं इन्हीं क्लासेस को एज मॉडल क्लासेस यूज कर दूंगा. ठीक है ना? जो कि रियल लाइफ सिनेरियो में होता है कई बार. हम ऐसे ही करते हैं, इन क्लासेस को डायरेक्टली यूज करते हैं प्रेजेंटेशन में, क्योंकि उस केस में मॉडल बनाना एक ओवरहेड है. अगर सेम क्लासेस ही यूज करने वाले हो आप, तो वो रेड बचा रहे हैं अभी हम. इसी में काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे, देखेंगे हम उन्हें कैसे ओवरकम करते हैं. तो फिलहाल हमारा एक व्यू बन चुका है. ये इसमें आप देख रहे हो, दिस इज रेजर व्यू. हाइपरलिंक बनाने के लिए @HTML, फॉर ऑल C# कोड. HTML मतलब आई एम एक्चुअली हिटिंग द सर्वर हियर. HTML.action लिंक. हाइपरलिंक बनाना MVC में इज एक्शन लिंक. फर्स्ट पैरामीटर लिंक टेक्स्ट, सेकेंड पैरामीटर एक्शन नेम. हमने बात किया था पहले, एवरी कंट्रोलर हैज अ सेट ऑफ एक्शंस. MVC में कैसे चलता है, कंट्रोलर हैज एक्शन, सो ओनली वन एक्शन राइट नाउ, इंडेक्स एक्शन. बट यहाँ पर अगर हम व्यू में देखें तो हम बोल रहे हैं कि अगर क्रिएट करना है तो क्रिएट एक्शन पे जाओ. अभी एक्शन बने हुए नहीं है. इसी तरह से कुछ लिंक्स नीचे पड़े हैं, एडिट, डिटेल, डिलीट. धीरे धीरे एक एक करके हम इनको बनाएंगे. अब इसको देखते हैं. यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज है. ASP.NET वेब फॉर्म्स में अगर आपने काम किया तो वहाँ पर कंट्रोल्स होते थे, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स. बट यहाँ पर कुछ नहीं है. यहाँ पर सिर्फ मेथड्स है विच विल आउटपुट HTML. तो एग्जांपल, डिस्प्ले नेम फॉर, डिस्प्ले फॉर, दोनों में फ़र्क क्या है? डिस्प्ले नेम फॉर किसी प्रॉपर्टी का नाम डिस्प्ले करेगा, नाम, प्रॉपर्टी का नाम. सो माई प्रॉपर्टी इज नेम, ये नेम डिस्प्ले करेगा. प्रॉपर्टी इज नेम_समथिंग, ये नेम_समथिंग डिस्प्ले करेगा. डिस्प्ले फॉर
ये उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ हमने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया है मॉडल मॉडल डॉट नेम। ये मॉडल में नेम आया कहाँ से? अगर यहाँ मॉडल देखो तो ये बोल रहा है मॉडल इज मॉडल्स डॉट पर्सन। इससे कैसे पता चला कि पर्सन है? तो यहाँ देखो टॉप पर हमने लिखा है मॉडल इज ऑफ टाइप आई इन्यूमरेबल पर्सन। मॉडल इज ऑफ टाइप आई इन्यूमरेबल पर्सन। ठीक है, यहां तक क्लियर? रन करके देखें इसको। अभी रन नहीं करेगा क्योंकि global.asx में राउटिंग इंफॉर्मेशन डिफाइंड होती है। रूटिंग के लिए हमारे पास जो क्लास है दैट इज रूट कॉन्फिग। अब यहां चलते हैं, यहां पर कंट्रोलर बोल रहा है होम, बट हमारा कंट्रोलर क्या है? पर्सन एंड एक्शन इज इंडेक्स। अब चलाते हैं अभी।